Hello friends, hi and welcome to this channel. Today we will study Indian Evidence Act, and without giving any bekar ka introduction, let's get into the law. And one suggestion for you, it is very important to study the jurisprudence of every Barat before you start reading Barat, so that you can understand the law and the purpose behind the law in a more better way. So we will start with, first of all, jurisprudence. This is Indian Evidence Act. You can have your notes ready with you, that is uh, the register and a pen, and you can prepare a proper notes for that. It will help you to revise the basics. You need to understand the jurisprudence of this act. And what is jurisprudence of Indian Evidence Act? This law of evidence plays a complementary role. So purpose behind the law of evidence is this plays a complementary role with CPC, that is the Civil Procedure Code, CRPC, Criminal Procedure Code, and any other substantive law which has been violated. Okay, so this is the purpose. Basically, everybody knows what is the main role of Indian Evidence Act in the court. You need to prove that the offense has been committed, and the accused who has committed the offense, he must be proved guilty and prosecuted, punished. For that, you need a process through which you can prove or disprove that the offense has been committed or it hasn't been committed. As there is also a maxim, ubi jus ibi remedium. That is, where there is a right, there is a remedy. So when why there is a right and there is a remedy? Because whenever there is a right, some or the other, by some or the other way, the right will be violated by other people, and then there comes the role of a remedy to protect that. Okay, next, uh, we need to understand that for applying this law of evidence, you need to consider three questions. Now it is very necessary to have a good focus, because nobody is telling you these things. There are three questions which you need to understand. The first question is, what to prove or disprove. The second question is, who will prove or disprove, right? And the third question is, how to prove or disprove. You need to answer these three questions and the purpose is sorted, because the law of evidence rotates around these three questions only. Now, what to prove and disprove. So there are three things you need to prove or disprove to prove a case, right? That is fact and issue, second is relevant fact, and third is exceptions, that the case falls under
the exceptions, right? Now these exceptions can be either general exceptions if we talk about the IPC, or exceptions covered under section 300. Who will prove or disprove? This is the question. On whom the burden of proof lies. जिसके ऊपर burden of proof है उसे ही obviously या तो वो proof करेगा या disprove करेगा, right? The third one is how to prove or disprove. This you will do through evidences, and these evidences can be oral evidence or documentary evidence, right? Now when it comes to documentary evidence, again there are two types of evidences: primary and secondary. So this is how it is. By answering these three questions, the whole suit or the case can be solved. That is, what to prove or disprove, who will prove or disprove, and how to prove or disprove, right? कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे? सबसे पहले प्रूव करेंगे फैक्ट एंड इशू. फैक्ट एंड इशू क्या होता है? रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊं अलग से, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, बिकॉज ये अपने आप में प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हैं. और उसके अलावा ये थर्ड चीज जो जनरली जिस पे कोई फोकस नहीं करता है, बट दैट गिव्स यू द एज ओवर अदर पीपल, एक्सेप्शंस. आपको हमेशा अपने केस में एक्सेप्शन ढूंढ के अपने क्लाइंट को या तो बचाना होता है, या फिर दूसरे जो, अगर आप प्रोसिक्यूशन में है, प्रूव करना होता है दैट द एक्यूज्ड डजंट फॉल अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शंस. तो ये भी आपको प्रूव करना जरूरी है, राइट? कौन प्रूफ करेगा? जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है. अब बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ पे नहीं होता, वो शिफ्ट होता है और डिफेंडेंट पे भी जाता है. ऐसे ही बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे नहीं होता, वो शिफ्ट होता है और एक्यूज पे भी जाता है. तो ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ हम पढ़ेंगे जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ेंगे. उसके अलावा द थर्ड इज हाउ टू प्रूव और डिसप्रूव बाय गिविंग एविडेंसेस. इसमें ओरल एविडेंस होंगे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी दो तरह के एविडेंस होते हैं, प्राइमरी एविडेंस होंगे और सेकेंडरी एविडेंस होंगे. अब ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे इन फर्दर अपकमिंग वीडियोस कि ओरल डॉक्यूमेंट, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, ये कब शिफ्ट होता है, फैक्ट एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट, ये सारी चीजें we'll be studying in detail in the next upcoming videos. All right, now coming further, relevant fact पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आपको आगे समझने में इजी रहेगा. रेलेवेंट फैक्ट. अब ये रेलेवेंट फैक्ट क्या है? आप इन्हें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी कह सकते हैं वंस प्रूव्ड. तो बेसिकली होते क्या है? सपोर्टिंग फैक्ट्स which needs to be proved, supporting facts which need to be proved. इसलिए टू प्रूव प्राइमरी फैक्ट्स. ऑलराइट, प्राइमरी फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए
जिन फैक्ट्स को प्रूव किया जाता है वो होते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स। और वंस द रेलेवेंट फैक्ट्स आर एग्जामिन्ड प्लस ड्यूली प्रूव्ड, एक बार रेलेवेंट फैक्ट्स एग्जामिन कर लिए, ड्यूली प्रूव कर लिए, देन इट बिकम्स circumstantial evidences, और इसका दूसरा नाम होता है एविडेंशियरी फैक्ट्स। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, एंड आई गेस अभी समझने के लिए ये काफी है कि रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से फैक्ट्स होते हैं। वो सेकेंडरी फैक्ट्स, वो किसी भी ऑफेंस से जुड़े हुए आसपास के वो सर्कमस्टांसेस जिनको प्रूव करने से हम प्राइमरी फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स, राइट। और रेलेवेंट फैक्ट्स एक बार एग्जामिन कर लिए जाए कोर्ट में थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन और ड्यूली प्रूव हो जाए तो दे बिकम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। आई होप ये वर्ड आपने पहले भी सुना भी होगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या फिर एविडेंशियरी फैक्ट्स। एविडेंशियरी फैक्ट्स क्या हुए? रेलेवेंट फैक्ट्स व्हिच आर ड्यूली प्रूव्ड बाय द कोर्ट, सॉरी इन द कोर्ट। ऑलराइट, तो अभी अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो ये क्या हुए कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर ए ने बी का मर्डर कर दिया, राइट। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस में आप क्या देख सकते हैं? आसपास के जो सर्कमस्टांसेस हुए वो देख सकते हो, यानी क्विरल हुई होगी दोनों के बीच में, कोई फाइट हुई होगी जब उसने मर्डर किया, वो देख सकते हो सकता है ए ने बी को थ्रेटन किया हो, तो दैट इज ऑल्सो द सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि उसको थ्रेटन किया गया था। या फिर ए इज फाउंड रनिंग फ्रॉम द स्पॉट, ठीक है, तो वो उसका कंडक्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो रेलेवेंट। या फिर और भी चीजें होती हैं बहुत सारी, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स हो गए जो प्रूव हो गए बाय बैलिस्टिक रिपोर्ट। अगर स्पेलिंग गलत है प्लीज स्पेल फॉर बैलिस्टिक रिपोर्ट, ऑलराइट। तो these things are relevant facts, ये सारे relevant facts हैं जो एक बार प्रूव हो जाए कि हाँ फाइट हुई थी, कि ए ने बी को धमकी दी थी, कि ए वाज फाउंड रनिंग, या फिर फिंगरप्रिंट्स प्रूव हो गए पिस्टल पे, तो दे go on to become the circumstantial evidences that will prove the story of the prosecution, right? तो अभी अभी हमने पढ़ा था द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड। अभी हमने पढ़ा था व्हाट फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड, जिसमें हमने पढ़ा था फैक्ट एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट एंड एक्सेप्शन। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, राइट। अभी कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रूव करने की जरूरत होती ही नहीं है, तो उसमें तीन आते हैं मेनली, दैट इज जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स, दूसरा privileged communication, और तीसरा
facts admitted in pleadings. ये 3 फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कोर्ट में. सबसे पहला होता है जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट्स, यानी वो फैक्ट्स जो कोर्ट खुद ही नोटिस में ले सकता है. इस पे आपका एक चैप्टर भी है, आप उसमें जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सेक्शंस बहुत सारे हैं कि कौन कौन से, एक लिस्ट दी हुई है फैक्ट्स की जिसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से फैक्ट्स को जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट्स कहा जा सकता है, जिनको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती और कोर्ट उनको खुद ही दे आर लाइक ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट्स जो कोर्ट को पता है कि दे एग्जिस्ट, तो यू डोंट नीड टू प्रूव टू द कोर्ट, राइट. दूसरा होता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. इस पे भी अलग से एक चैप्टर है जिसपे आपको बताएंगे, पूरी लिस्ट है कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है. वो कोर्ट में इवन इफ दे आर एविडेंसेस एंड दे कैन प्रूव द केस, स्टिल दे आर नॉट अलाउड टू बी प्रूव्ड. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है दिस कम्स अंडर द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. एक हस्बैंड ने अगर मान लो कोई मर्डर भी किया है और वो घर आके गलती से कर दिया और वो घर आके अपनी वाइफ को बताता है कि देखो मैंने मर्डर कर दिया है, अब मैं क्या करूं, पर तुम किसी को बताना मत. तो अगर वाइफ जाके कोर्ट में बोले कि देखो मेरे हस्बैंड ने मर्डर कर दिया, शी इज नॉट अलाउड टू प्रूव इट. व्हाई? बिकॉज लॉ ऑलवेज वांट्स टू प्रोटेक्ट this kind of institution called marriage, for which trust should not be broken. अगर इस तरह होने लगा तो कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करेंगे विद द फियर कि कल वो कोर्ट में जाके बोल सकती है, which will actually hamper the relationship. तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि वो एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहे. इसीलिए वहां पे लॉ ये कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई कोर्ट में आकर दूसरे के अगेंस्ट वो कोई भी एविडेंस देना चाहता है या एज अ विटनेस बन के आना चाहता है तो इट इज नॉट अलाउड टू बी प्रूव्ड. हाँ, बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसका एक्सेप्शन क्या होगा, इसका एक्सेप्शन होगा कि जो केस है वो हस्बैंड एंड वाइफ का ही है, डिवोर्स केस हो गया फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली जब केस ही दोनों के बीच में है तो उसमें से एक ने अगर दूसरे पे केस किया तो दूसरा उसके बारे में बोलेगा, ठीक है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज प्रिविलेज कम्युनिकेशन में और बहुत से आते हैं जो हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स जो है आते हैं जो हम पढ़ेंगे तो विल गेट टू नो. थर्ड इज फैक्ट्स एडमिटेड इन प्लीडिंग्स. ऑब्वियसली ये तो नाम से बहुत क्लियर हो रहा है कि प्लीडिंग्स में जो भी फैक्ट्स आप एडमिट कर लेते हो, एडमिशन कर लेते हो, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती. दे आर एडमिटेड तो दे आर ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में. अभी मैंने बताया व्हाट टू प्रूव, व्हाट नॉट टू प्रूव. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे how to prove. All right, so this is all for today. Have a nice day. Take care of yourself and bye bye.